Hello everyone. I hope all of you are ready for your entrance exam, Delhi University entrance exam for BTech Information Technology and Mathematical Innovations. So I just wanted to share a couple of frequently asked questions with all of you. Though mostly we upload these informations on our website, but unfortunately for some reason it is not working. So I thought of sharing it here, but I would like to start with a disclaimer that kindly do not quote this anywhere as an official document. This is just for briefing you about the Cluster Innovation Center and specifically about the BTech course, Information Technology and Mathematical Innovations, and the questions which are usually asked for the same by students, their parents, and whosoever is trying to take admission into the course. I'm sure you might be wondering about a lot of things about Cluster Innovation Center, and anxiety might be really on the top of it because exam is on, I think, 29th September for this course. And there will be a lot of questions which you will be asking about this course. And there might be a lot of questions related to this course in your mind. So I just wanted to clarify a couple of things related to the same. So as far as Cluster Innovation Center is concerned, I mean, these are some of the queries which we keep on getting on our emails or calls or in office most of the time. So we try to make a brief document and get it uploaded on the website so that so that most of the candidates can go through it on their own, and if not, at least they will have some idea if their phone calls are not answered or emails are somehow not answered. So they will have an answer, and I'm sure its copy might be on the university website also, because we had shared it probably with the Delhi University website, and it might be uploaded somewhere in the documents. So anyway, so as far as Cluster Innovation Center is concerned, I think I'll go with I'll go in a bilingual mode, because बहुत सारे students हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों ही बैकग्राउंड से आते हैं, और दोनों ही, हालांकि मोड ऑफ जो टीचिंग है दैट इज मोस्टली इंग्लिश, बट स्टिल वी ट्राई टू ट्रांसलेट फॉर दोज जिनको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में नहीं है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके थोड़े कंफर्ट जोन में भी रहे. So Cluster Innovation Center, as far as is concerned, this is a university department as any other department of university, and this center was basically set up with an objective that we will try to foster an ecosystem of innovation, and will connect it with the research. And the targeted applications will surely benefit to the society, which means that we'll try to work on the problems जो innovation based problems हो, जो ऐसी problems हो जो हमारे society से आ रही हैं, और उनके link जो हो वो society से हो, उनके जो applications हो so वो किसी भी तरह से society को benefit करें. सो मोस्टली ये पूरा जो कोर्स है वो सारा बहुत सारा इसका जो कोर्स कंटेंट है वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे बेस्ड है. जो प्रोजेक्ट्स आप कंटिन्यूअसली थ्रू आउट आप अपने 4 सेमेस्टर्स अपने 8 सेमेस्टर्स में करते हैं. दिस इज अ 4-year कोर्स, 8 सेमेस्टर्स हैं इसमें, और ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं. समर इंटर्नशिप्स होती हैं, विंटर इंटर्नशिप्स होती हैं. आपकी कोर्स में ही आपके जो करिकुलम है उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं. आपके पेपर्स में सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं. सो दे एंड जो लास्ट हमारा सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर है, वो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप है of 6 months. There will be no theoretical papers, and it will be all completely industrial internship based paper, and you will be marked on the basis of the same. So this course was basically started in 2011, and the very first batch was graduated in 2015.
So the course criteria is basically different for all the categories. For example, for general category and EWS, we need 60% marks in any 4 subjects, including mathematics. So the criteria is very clear. The most important requirement is that we require candidates to have mathematics as one of the subjects at 10+2 level for sure. So that is one of the most important criteria. And then you can see that 60% marks should be obtained in any 4 subjects for general or and EWS category. OBC category के लिए 54%, physically handicapped के लिए 57%, and SC/ST category के लिए passing marks होने चाहिए with mathematics as one subject. And all these admissions will be done on the basis of merit list only, which will be based on your entrance test. Another important thing I want to mention here is that अभी जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, completely हमारा जो एडमिशन है उसके ऊपर बेस्ड है. आपका कोई भी इसके अलावा और एग्जाम या आपका इंटरव्यू नहीं होता है. तो आपकी जो मेरिट आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे बनती है, उसी मेरिट के बेसिस पे ये एंट्रेंस एग्जाम आपका एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही एडमिशन होता है. देयर विल बी नो इंटरव्यू, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड हमें मिलते रहते हैं, स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं. तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा. इनिशियली जब कोर्स स्टार्ट हुआ था, देन देयर वर डिफरेंट थिंग्स. उस समय हम इंटरव्यू कुछ साल तक ले रहे थे, बट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स नाउ दैट इज नॉट डन. सो इट इज ओनली एंट्रेंस बेस्ड. आपके जितने भी मार्क्स आएंगे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, उसके ऊपर आपका एडमिशन होगा. आपका जो प्रोसीजर है लेने का एडमिशन, वो अब तक बाय नाउ सबको क्लियर हो गया होगा कि जो यूजी एडमिशन का जो पोर्टल है आपका, अभी फिलहाल एक सेपरेट पोर्टल बना हुआ है, बट अदरवाइज आल्सो देयर विल बी एक अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी वेबसाइट एवरी ईयर, एंड उसके थ्रू आपको रजिस्टर करना होता है. जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको अपने वेबसाइट पे इसकी एडवर्टाइज करती है, यूजुअली एवरी ईयर हमारा जो एडमिशन होता है, हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ा अभी इधर शिफ्ट हुआ है हमारे डेट्स वगैरह, बट यूजुअली अदरवाइज हमारा अप्रैल मई से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अगर कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे, so you will be able to find out that I mean you should be aware of whenever the portal opens, and then you need to get yourself registered. अगर आप इस बार नहीं भी दे रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, you should remember that you should get yourself registered on the undergraduate admission portal of Delhi University. And the admission will be multiple choice questions based entrance test, which is nothing but Delhi University entrance test. And for last few years it is conducted by the University of Delhi through National Testing Agency, that is NTA. So NTA is taking care of all the entrance examinations of Delhi University as of now. And it has various test centers all across India. For that, you will have to see the admission brochure, where you will find the detail of all the test centers which are available where these exams are taking place. So you can just go through those, and you will be able to find out. I mean, that is for the students who will be willing to take admissions in the coming years. Then as far as syllabus is concerned, syllabus is very simple for the entrance test. You just need to read the mathematics at the 10+2 level, and all the basic concepts you need to revise. And also what you need to do is, give me a sec. So yeah, so mathematics till 10+2 level, and then there will be questions based on reasoning and analytical ability. They will be very simple questions, reasoning and analytical ability, but you will have to be very thorough with your mathematics. Your understanding about the mathematics as a subject has to be very thorough, and specifically if most of the questions will be application based questions, so you need to really work hard for the same. You will have to really study mathematics very well, because this course is a very well sought out course, because thousands of applicants fill up this form every year, and seats are since very limited. So this is a very, very competitive course. So all of you need to remember that you really need to work very hard if you want to get through this course. As far as
As far as this entrance exam is concerned, you will realize that this is not very this is not something which you can't clear, because most of the time students who are in 12th class, they are already going through lot of other entrance examinations, and most of the entrance examination would be maths based only. So I hope your maths will be taken care of from them, but still you need to practice a little bit more if you talk about Cluster Innovation Center BTech course, because here you will be getting questions mostly which are application based questions. So you'll find 1 or 2 question papers on the Delhi on our center's website, Cluster Innovation Center की जो website है DUCIC वेबसाइट, यू विल क्लस्टर इनोवेशन सेंटर अगर आप डालेंगे गूगल में भी तो आपको वेबसाइट का एड्रेस मिल जाएगा. सो कुछ पेपर्स उसमें अपलोड होंगे. लास्ट ईयर का पेपर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं. यूजुअली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो सो दैट यू हैव एन आइडिया दैट व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू माइट बी गेटिंग इन द एंट्रेंस, एंड आप उस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं. So as far as exams duration is concerned, it will be 2 hours duration exam. Then seats जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में, they are very limited. That is another very important thing that because of that it becomes a very competitive course. As you can see the seat matrix, the general category has 20 seats, EWS 5, OBC 14, SC 7 and ST 4, and there are then some supernumerary seats for PWD category, CW category and foreign nationals. So ये seats depending upon Delhi University rules can change anytime and will always be notified on Delhi University website. So preparation के लिए I have already told you mathematical concepts आपको 10+2 के पढ़ने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्यादा पूछा जाता है वो, कैन स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हैविंग मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज देयर सब्जेक्ट्स अप्लाई फॉर बीटेक. कि तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए कि ये जो बीटेक कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्लस्टर इनोवेशन सेंटर का, इसके लिए इवन आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट स्टूडेंट्स शुड हैव मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश. अगर स्टूडेंट के पास मैथमेटिक्स और इंग्लिश है 12th में तो वो अप्लाई कर सकता है, बिकॉज मैथ्स इज द बेसिक क्राइटेरिया. अगर आपके पास मैथ्स एक सब्जेक्ट है तो कोई भी और दूसरे 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर के आपके अगर 60% बनते हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच ऑल ऑफ यू शुड नो. जिन लोगों ने पहले 2020, जैसे अभी हम 2021 की बात कर रहे हैं, तो 2020 से पहले भी जिन लोगों ने इस कोर्स के लिए जिन्होंने पास आउट किया है 10+2 और फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस को वो फुलफिल करते हैं. तो जो एलिजिबिलिटी मैंने अभी आपको बताई. एज लिमिट क्या है? एज लिमिट कोई है नहीं अभी सीआईसी के इस कोर्स के लिए, तो आप जब आप चाहें आप बीटेक करना चाहते हैं और आप तभी अप्लाई कर सकते हैं कोर्स को. एंट्रेंस एग्जाम है, यू जस्ट हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट. My mouse keep jumping because I have zoomed it out so much document go. Anyway, so this was question 10 which I just discussed. 11. So another important question which we keep on getting from students and their parents is क्या जेईई के स्कोर्स जो हैं वो कंसीडर होते हैं इस कोर्स के लिए या नहीं होते हैं. So let me tell all of you that इस कोर्स का जेईई से कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज ये जो कोर्स है हमारा, ये हमारा कोर्स पूरा जो कोर्स है ये हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू गवर्न होता है. तो इसमें हमारे कोर्स में जेईई से इसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. तो आपको अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जेईई एग्जाम दिया है और फिर आप सीआईसी के बीटेक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. आपको इस कोर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट ही देना पड़ेगा. उस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ही आप इसको क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे. ओके, सो
me see what is the other questions. What are the other questions? This I have already made clear to you that JEE इसका criteria नहीं है. डुएट में अपेयर होने के लिए क्या आपको किसी कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेना चाहिए एडमिशन? नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. अर्लियर बहुत इनिशियल ईयर्स में दिस वाज वन ऑफ द कंडीशंस कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में एडमिशन लेके उसके बाद सीआईसी में बीटेक के लिए अप्लाई करना होता था. बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे डायरेक्टली डुएट टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कोई इंटरव्यू होगा? नहीं होगा. दैट आई हैव ऑलरेडी मेड क्लियर टू यू कि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपके जितने मार्क्स आते हैं उसके ही बेसिस पर होगा. मैथ्स क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 1-2 क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर ऑलरेडी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीआईसी वेबसाइट पे ducic.ac.in आप देख सकते हैं, या आप एनटीए के वेबसाइट पे भी 1-2 क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये कोर्स कौन ऑफर करता है, तो ये कोर्स बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है, बिकॉज क्लस्टर इनोवेशन सेंटर इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर करती है और ये कोर्स का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है. दो एज आई हैव मेंशन्ड कि वी ट्राई टू हेल्प आउट दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो उन स्टूडेंट्स को भी हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई कि उनको भी हम थोड़ा सा बाइलिंगुअल मोड में पढ़ा दें, लेकिन जो मेन कंटेंट बेसिकली जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट रिमेन्स इंग्लिश. देन अनदर क्वेश्चन इज कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो बाकी जो बीटेक कोर्सेज हैं उनसे किस तरह से अलग है. सो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है जो मैंने आपको इनिशियली भी मेंशन किया था कि ये जो कोर्स है ये कोर्स बहुत ही स्पेसिफिकली ब्यूटीफुली डिजाइंड कोर्स है. क्योंकि इस कोर्स में हमारा जो मेन फोकस है वो फोकस हमारा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स पे होता है, जो प्रोजेक्ट्स हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे अपने आप को रिलेट करते हैं. तो इसमें जो मैक्सिमम जो हमारे क्रेडिट्स आते हैं वो 60% क्रेडिट्स तो हमारे प्रोजेक्ट से ही आते हैं. मतलब 60% हमारे जो मार्क्स आएंगे वो हमारे प्रोजेक्ट से ही आएंगे, जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स इस पूरे कोर्स में करेंगे, और 40% हमारे सिर्फ थियरी के मार्क्स होते हैं जो उनके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं. तो इसीलिए ये कोर्स बिल्कुल यूनिक कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने की, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करने की, बहुत डिफरेंट वेरीड डायमेंशंस के प्रोजेक्ट्स करने की, बिकॉज यू कैन वर्क ऑन एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट इज related to information technology, mathematics, biology, bioinformatics, biotechnology, even any course related to humanities. Whatever, I mean, whatever you can think of, you can work on that. This gives you a very, very wide horizon of working. Exposure of students is really good, and they're exposed to a lot of interesting problems, because course gives an opportunity to all the students to work on various projects throughout their semesters. In all the 7 or 8 semesters, they keep on working on different kinds of projects, and because of that their exposure is very good, and that is why the course becomes very interesting. जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कैंडिडेट्स के, ये भी बहुत पूछा जाता है कि आपके एलुमनाई क्या कर रहे हैं. एलुमनाई ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में है जो भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि कोर्स उनको इस तरह से इतना वाइड एक्सपोजर देता है चीज़ों का कि हर तरह से स्टूडेंट्स जहां वो जाना चाहे जा सकते हैं. मास्टर्स प्रोग्राम में जा सकते हैं, पीएचडी प्रोग्राम में जा सकते हैं. स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे फेलोशिप्स के लिए. कॉमनवेल्थ फेलोशिप लिए स्टूडेंट्स ने हमारे पीएचडी प्रोग्राम में आईआईटी बैंगलोर से किया है. बहुत सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड हैं, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं. इवन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में जो हमारी 8 सेमेस्टर की होती है उसमें कुछ स्टूडेंट्स अब्रॉड चले जाते हैं. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल 5, 6, 7 स्टूडेंट्स तो गूगल समर ऑफ कोड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए सिलेक्ट होते हैं. द सक्सेस रेट इज वेरी वेरी गुड फॉर द सीआईसी स्टूडेंट्स. इवन समटाइम्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स गेट थ्रू दिस and they get an opportunity to work with the mentors who are foreign based. So you can you can work on work in any field, in addition to obviously all the companies or the institutions. Some of them are mentioned here: IBM Research, MU Sigma, KPMG, Pitney Bowes, Vistara Airlines, Paytm, a lot of companies, TCS.
बहुत कुछ स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप भी बनाते हैं, सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु कम अप विद देयर ओन आइडियाज. We try to nurture them at Cluster Innovation Center or Design Innovation Center, and then they launch their own startups also. Some of the students have already been working on their startups and are really doing well. So I mean, horizons are undoubtedly unlimited, so you can work on anything you want. What is the course structure of BTech IT and Mathematical Innovation? Course structure वैसे CIC की वेबसाइट पर ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप फिर भी और कुछ उससे एडिशनल पूछना चाहें तो आप बाद में मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रोबेबली पूछ सकते हैं, क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर इतना विविड है और इतना वाइड है कि समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ पर्सन हु इज न्यू टू दिस. सो इसीलिए आपको अगर उससे रिलेटेड कोई और चीज पूछनी है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप बाद में इस जो मैंने वीडियो अभी बना के मैं अपलोड कर रही हूँ उस पर आप पूछ सकते हैं मुझसे बाद में. आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. I'll try to answer as many questions as possible. Where was I? I think I covered. So let me see how many questions did I cover. I think I covered 18, 19, 20. Okay, I need to see the 21st question related to the. Give me a sec. Since I've zoomed it. Okay, this is my 21st question. So 21st question means this one. So this one is related to the fee structure. So fee structure is very, very low. I mean, it's really very minimal. Just 5,000 rupees per semester, and 1,000 rupees will be library security fee, which will be refundable. This is per semester fee, and this can be changed at any point of time if the university decides to do so. एंट्रेंस टेस्ट के वेन्यू के लिए अगर आपको पता करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जो ब्रोशर है, जो बुलेटिन होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा. रिजल्ट कब आएगा आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का? अभी 29 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो यूजुअली 10 to 15 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है. 100 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे रिटन एग्जाम में. हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, हर रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 मार्क डिडक्ट होगा, और कोई भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए आपका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग भी है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, कि आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछते हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स भी, कि क्या बीटेक कोर्स करने के बाद बच्चे गेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? यस दे आर. आप गेट एग्जाम दे सकते हैं. अगर आप बीटेक कोर्स आपने किया है तो आप गेट एग्जाम दे सकते हैं. यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द एमटेक कोर्सेज एज वेल. तो आप कोई भी, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, कि आपको इस कोर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपको लगे कि जो आपके लिए कहीं पे भी कोई भी इनहिबिशन है किसी चीज से, आप ये नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी एबल टू डू बिकॉज इट्स अ वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड कोर्स व्हिच इज गिवन बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी. सो 4 years का कोर्स है. आई ऑलरेडी मेंशन्ड 8 सेमेस्टर्स का है. अच्छा, इसमें दूसरी चीज आपको ये जानना है, मैंने पहले भी बोला है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सिलेबस है, आप देख सकते हैं. तो जो सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि बेसिकली जो ये जो कोर्स है वो मोस्टली मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्स है, बट इट ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन टू ऑप्ट फ्रॉम 3 different streams which we offer here. तो वो 3 जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं वो आपकी क्या है? एक है रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, एक है इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और एक है आपका सिस्टम्स बायोलॉजी. सो अगर आपको इंटरेस्ट है कहीं पे भी रोबोटिक्स में या एम्बेडेड सिस्टम्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हमारी एक स्ट्रीम आप चूज करेंगे 2nd 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स,
एंड दैट विल गिव यू एन ऑप्शन कि आप उसी स्ट्रीम में फर्दर आगे जाते जाएंगे एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स में आप अपने जो भी पेपर्स अवेलेबल होंगे वो करते जाएंगे। उसी में साइमल्टेनियसली हमारी जो दूसरी स्ट्रीम है दैट इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। तो उस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड पेपर्स हैं या आपके एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड पेपर हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बीटेक करने के बाद आपका इंटरेस्ट है कि आप एमबीए करना चाहते हैं, सो ऑब्वियसली दिस पेपर विल बी हेल्पफुल टू यू कि आप उसके बाद उस कोर्स में जा सकते हैं और आपको बेसिक आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको ये कोर्स दे देगा उससे रिलेटेड, एंड देन यू कैन गो फॉर अदर कोर्सेज। सिमिलरली आप अगर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रीम्स बनती हैं आप उन स्ट्रीम्स में जा सकते हैं। ये पेपर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप सारी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी लर्न करें एंड कंप्यूटेशनल जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमएससी बायोफिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, आप इस तरीके के एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके के जो कोर्सेज हैं जिनमें आप बायोलॉजी से लिंक्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उन कोर्सेज में जा सकते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि ये पूरा जो पेपर होगा वो स्पेशलाइज्ड पेपर होगा और आप कंटिन्यूअसली आपको बिल्डअप किया जाएगा या ट्रेन किया जाएगा, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको डिफरेंट बेसिक बायोलॉजी से लेके आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी पढ़ेंगे, सिस्टम्स बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, आप कंप्यूटेशनल मॉडलिंग भी करेंगे, आपको थोड़ा बहुत वेट लैब का एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा, डिफरेंट टेक्निक्स भी पढ़ाई जाएंगे। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग stream to go through. Then we don't have any placement cell. ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। कुछ हमारा अपना इंडस्ट्री आउटरीच सेल है सीआईसी में जो स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं, बट यूजुअली लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई मीन एज आई मेंशन्ड अर्लियर, you need not to quote me anywhere, but स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्लेसमेंट सेल की जरूरत पड़ती नहीं है। रीजन बीइंग कि इस कोर्स में वो इतना उनका एक्सपोजर ऑलरेडी अपने इंटर्नशिप्स के थ्रू हो जाता है, बिकॉज एवरी सेमेस्टर दे आर डूइंग इंटर्नशिप्स। सो उनका ऑलरेडी इतना वाइड एक्सपोजर हो जाता है कि यूजुअली दे दे आर एक्सपोज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम at the places where they're working, or otherwise they get to have a lot of opportunity of different institutions or companies where they are absorbed. So we do not have any specific placement cell of our own, but agar aap placement cell chahte hain to Delhi University ka placement cell hai, you can get yourself registered there if you want to. बीटेक कोर्स में कोई भी स्पोर्ट्स या ईसीए का कोटा नहीं है अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ। सो अगर आप स्पोर्ट्स या ईसीए कोटे से किसी भी तरह से बीटेक में एंट्री लेना चाहते हैं तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी लेटरल एडमिशन का तरीका नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर आप फॉरेन नेशनल हैं और फॉरेन नेशनल के थ्रू आपका एडमिशन आप चाहते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, सो इन दैट केस यू आर सपोज टू कॉन्टेक्ट द फॉरेन स्टूडेंट्स एडवाइजर्स ऑफिस, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, Foreign Students Registry Office, room number 3, Conference Center, near gate number 4, North Campus, Delhi University, and email address is also there. So you are supposed to contact the foreign students advisor office if you are a foreign national and if you wish to take admission in BTech course of Delhi University, because I think I mentioned already that there are probably 3 seats which are supernumerary seats which are for the foreign national category, and we already have few students from this category in this course. So office will remain closed on Saturday, Sunday, and all public or gusted holidays, as it is mentioned. Again, I would like to read this disclaimer for all of you that all the above information, all the information which I've shared with all of you is subject to change as per the relevant decision of University of Delhi in this regard at any point of time. सो दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजर्व करती है अपना राइट और किसी भी टाइम पे इन डिसीजंस को कभी भी चेंज कर सकती है। एज ऑफ नाउ whatever I have shared that shared with all of you is very informally shared. Otherwise, usually we put up this on our website, the CIC website, for the students, but somehow unfortunately the website is not working. And people are not able to fix it for some reason, but anyway, so I have shared most of the information with all of you.
I hope things might be clear to you. And in case you have any further queries, you are most welcome to write your questions or comments in the description box, in the comments box later of this video. And please keep share it with all your friends or all your classmates who wish to take admission either in this semester or either in this session or maybe in the coming years to coming years. And if they are targeting BTech, information technology and mathematical innovations, so they should be aware of all these things, and please do share it with all of them as well. And I wish all of you the very best, and hope to see some of you around very soon. Wish you all the very, very best. Keep doing well in your life.